तस्वीरें बना के भेजते थे और जिसको पसंद आती थी वो पैसे दे के ले जाता था। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। एक औरत आई थी, वो ले गई थी अपने क्या घर। कहती है आप? मुझे कहती यहाँ हालात नहीं ठीक, तुम मेरे घर आ जाओ, तो जब बस आएगी मैं तुम्हें बस पे बिठा दूंगी। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਆਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ, ਮਾਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तो जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ बच्ची और उसकी वालिदा मौजूद है जो अगवा होने के बाद तकरीबन 2 माह तक लोगों की गिरफ्त में रही और उसके बाद उसको वहाँ से आगे 4.5 लाख रुपए में बेचा गया। तो अभी वालिदा से जानते हैं और बच्ची से जानते हैं कि असल मामला क्या था, बच्ची किस तरह किडनैप हुई और किडनैप होने के बाद इसको सिंध में कैसे ले जाया गया, ये सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। माँ जी की मामला होया सी, तुहाडी बेटी किवें अगवा हुई? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਧਰਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਈ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਆਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਪਈ, ਥਾਣੇ ਗਈ, ਫਿਰ DPO ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ DPO ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਫਤ ਮਾਰਕਲ ਗਈ ਸਾਂ। तफज़ मरकज़। ਹਾਂ ਤਫਤ ਮਰਕਜ਼ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਡਮ ਅਫਜ਼ਾਲਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਜਣਾ ਨਸਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ DPO ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰਕਲ ਫਿਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰਕਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਡਮ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਨਾ ਰੋ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। मैडम मुनज़्ज़ा करामत ने इस बदले कोई तुहाडे कोल पैसे भी लए ने? ਨਹੀਂ ਭਾਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਆ, कोई चीज़ नहीं ली? ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कोई होर तुहाडे कोई काम लिया ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਛ ਬਦਲੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ। हमें बेटी तो इलावा तुहाडे किवें गुजरे ने, की तुहाडे दिल ते गुजरती रही? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ, ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ, ਮਾਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ। ਤਫਤ ਮਾਰਕਲ ਮੈਡਮ ਨੁਗਜ਼ਾਲਾ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਮਨਜ਼ਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਰਾਮ, ਤੇ ਉਸ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ठीक है। नाज़रीन, अभी मेरे साथ वो लड़की मौजूद है जिसको अगवा होने के बाद सिंध के इलाके में बेच दिया जाता है। इससे सारी कहानी जानते हैं, वहाँ पर क्या माहौल था, क्या मामलात थे, कैसे अगवा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कहाँ से आप अगवा हुई थी? मैं मुल्तान से। मुल्तान से। और मुल्तान से किस तरह रिक्शे में बैठी थी, लोग आए थे किडनैप करके ले गए थे, क्या मामला हुआ था? एक औरत आई थी, वो ले गई थी अपने क्या घर। कहती है आप? मुझे कहती यहाँ हालात नहीं ठीक, तुम मेरे घर आ जाओ, तो जब बस आएगी मैं तुम्हें बस पे बिठा दूंगी। मैंने कहा ठीक है, बस के साथ आप जाएगी। अड्डे में क्या कर रही थी? मैं बैठी हुई थी अच्छा, शोहर के साथ लड़ाई क्यों हुई थी? घर, बस थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, मैं आ गई घर मम्मा को ठीक है। कार से। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ आपको ले गए? आपको पता नहीं था, बेहोश किया था, कैसे सिंध कैसे चली गई? उसने चाय में कुछ डाला था, चाय पिलाई थी अपने घर जाके, अच्छा, तो चाय में कुछ डाला था ठीक है। तो बस बेहोश हो गई। रातों रात सिंध चली गई थी? हाँ जी, ले गए थे उसे। ले गए थे। हाँ। और जब वहाँ पे जाके होश आया तो कितने आदमी थे वहाँ पे? वहाँ बहुत सारे आदमी थे। काफी ज्यादा थे। हाँ। और भी लड़कियाँ थी?
हाँ जी 10-12 लड़कियां वहाँ थी। 10 से 12 लड़कियां और थी जो अगवा हुई थी वहाँ? हाँ जी वो भी बेचा गया था? हाँ जी ठीक है। आपको कितने लाख में आगे फरोख्त किया गया है? 4.5 लाख में। 4.5 लाख में। हाँ जी। अच्छा, जो लड़कियां वहाँ पर थी, क्या उन लड़कियों के साथ कोई वहाँ पर ज्यादती भी करता था, या उसको उसकी कोई तस्वीरें वगैरह बनाकर किसी को दिखानी, या फिर उसके कोई रेट लगाने, या इस तरह के मामलात होते थे? वो ऐसे करते, तस्वीरें बेचते थे क्या करते बना के, तस्वीरें बना के बेचते थे, और जिसको पसंद आती थी वो पैसे दे के ले जाता था। अच्छा, वहाँ पर जिसको जो लड़की पसंद आती थी उसको पैसे दे के ले जाते थे? हाँ जी। और वो कहाँ से हुआ हुई? वो यहाँ का पंजाब से ही हैं सारी। पंजाब से ही हैं? सारी पंजाब की हैं। सब की सब पंजाब की हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो जब उन लड़कियों से आपकी गुफ्तगू हुई तो उन लड़कियों ने कोई आपको बताया नहीं कि मेरे वालिदैन को जाके, या अगर कोई आपस में कोई डिस्कशन होती है, कोई आपस में कोई बात होती है, तो क्या कहती थी? वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ वो कहती थी कि मैं बस ये लेने आ जाती, मैं घर से लड़के आ जाती थी, मम्मा से झगड़ा हो गया, भाइयों से हो गया, भाइयों ने निकाल दिया, ऐसा होता था। तो वो कभी काम बैठ जाती, काम में थी, वहाँ से एक औरत आती थी, वो उनको ले जाती थी। अच्छा, और आगे भेज देती थी। आगे भेज देती थी? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ बच्चियों को बेचा ही जाता था, या फिर उनको सुबह में या रात में किसी भी वक्त में जो कि दूसरे बुरे कामों के लिए भी आगे फरोख्त किया जाता था? नहीं, वापस आ जाते? बस बेचा जाता था, बैठे रहते थे, बेच देते थे। अच्छा, वो किस तरह का, कोई कमरा था, जेल थी, क्या था? वो कमरा था, कमरे में बंद किया होता लड़कियों को। खाना देते थे? हाँ जी, खाना देते थे। आदमी कितने होते थे? आदमी होते थे 8-9 आदमी थे। 8-9 आदमी होते थे। हाँ जी। उनमें से कोई लड़की किसी आदमी के पास भी सोती थी? नहीं, कोई भी नहीं सोती? नहीं। वो खुद उसके साथ कुछ भी नहीं करते थे? नहीं कुछ नहीं करते थे जो बाबा। करते थे दूसरे बंदे ही करते थे? हाँ जी, जो ले जाते थे। ठीक। अच्छा, वो शक्लो सूरत किस तरह के आदमी थे? एक तो वो जैसे कच्चे के डाकू होते, बड़े बड़े बालों वाले, या इस तरह के थे? नहीं, वो हमारी तरह ही थे। आपकी तरह ही थे? हाँ जी, ठीक है। कौन सी ज़बान बोलते थे? सिंधी बोलते थे। सिंधी बोलते थे। अच्छा, आप फिर आगे 4.5 लाख की फरोख्त हुई है, तो आपको कौन लेके गया था? वो एक बड़ा बाबा लेके गया था। बाबा लेके गया था। बाबे ने क्या किया आपके साथ? कुछ नहीं, बस खाना ही बनवाया था अपने घर के लिए। कितने दिन खाना बनाती रही? 1 महीना। 1 महीना? हाँ जी। तो कभी मारा भी था उसने, कोई पीटा भी था आपको, कोई कभी तशद्दुद भी किया था? नहीं, कोई आपसे निकाह की बात की हो? नहीं। बाबे के घर में और कौन कौन था? उसकी बेटी और एक बहन थी। उसकी बेटी और एक बहन थी। बहन थी। और आपको फिर क्यों लेके गया? वो उनके साथ नहीं बोलते थे ना, अलग रहते थे। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। फिर जिस घर में आप रहते थे उस घर में उसकी बेटी और भांजी नहीं थी? नहीं, वो लैदा थी। उस घर में आप और बाबा ये अकेले ही थे? हाँ जी। ठीक है। बाबे ने कभी आपको कोई बात, कोई बुरी कहा हो, या आपके साथ कोई बुरे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। भी नहीं था? नहीं। चलिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस आप तक कैसे पहुंची? आपने कैसे रब्ता किया? मैंने किया था कॉल मम्मा को अच्छा। कि मुझे यहाँ से निकाल दो, ये बहुत लोग बुरे हैं, अच्छा नहीं है। तो मम्मा ने फिर गई। मोबाइल कहाँ से लिया था? वो बाबे का था। बाबे का था? बाबा घर में मोबाइल छोड़ के कहाँ गया था? वो पता नहीं कहाँ चला गया था, मोबाइल चार्ज पे लगा के चला गया था। शक नहीं हुआ उसको जब आपने कॉल की है? हो गया था। हो गया था? हाँ। फिर कैसे शक कैसे हुआ? उसने कहा तुमने अपने पीछे घर वालों को कॉल किया। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने झूठ बोल के उससे भी समझा दिया। मैंने कहा उसको शक हुआ कैसे था? कोई रिकॉर्डिंग हुई थी, क्या हुआ? नहीं, कहा उसने पता चल गया था, मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, उसने बंद करके लगाया था, मुझे याद भूल गया, मैंने ऑन कर दिया। ठीक है। हाँ। फिर उसने उसके बाद मारा होगा आपको, कोई तशद्दुद तो किया होगा? बस थोड़ा गुस्सा किया था। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो अभी फिर उसके बाद क्या हुआ था? बाबा फिर कैसे आप आई, वापस कैसे आई? मैंने फिर कॉल की घर वालों को, इन लोगों ने नंबर दिया और थाने पे, और उसकी लोकेशन निकाल के वहाँ आ गए, मुझे वहाँ से ले आए। ठीक है। अच्छा, पहली कॉल किसने रिसीव की थी? पहली कॉल मैडम नज़र ने। मैडम साहिबा ने? हाँ जी। मैडम साहिबा ने क्या कहा था? मैडम साहबा ने अपनी टीम भेजी थी वहाँ। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। फिर वो मुझे वहाँ से निकाल के लेके आए थे। वहाँ पर कोई बंदा असले वाले या इस तरह का कोई भी नहीं था? नहीं। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद बाबा पकड़ा गया? हाँ जी, बाबा पकड़ा गया। मैडम नज़ा करामत ने आपके साथ तामुन किया है? बहुत अच्छा किया बहुत उसने। ज़्यादा किया। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने के बाद कोई मामूली सी रंजिश होती है तो घर छोड़ देती, बाहर निकल आती। उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हो आप? तो एक उन लोगों के ग्रोह से आज़ाद होकर आई हो कि आपके लिए बहुत मैं कहता हूँ खुशकिस्मती है, वालिदा के लिए भी और आपके लिए भी, कि आप किस तरह उनके चुंगल से आज़ाद होकर आई हैं। तो क्या कहना चाहेंगी उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को जो घर में मामूली सी लड़ाई पर बाहर निकल जाती हैं?
उनको यह कहना चाहती हूँ कि किसी भी बातों में ना आए, किसी के मतलब बातों में ना आए और किसी के साथ ना जाए, किसी की चीज़ लेके ना खाए। हाँ जी, और झगड़ा अपने घर वालों से ना करे, भाई ना आए। अच्छा, जो अगवा करते हैं उनका हुलिया किस तरह का होता है? वो भी हमारे तरह इंसान ही होते हैं इस बिल्कुल तरह। same इसी हाँ तरह जी, के होते हैं। हाँ जी। ठीक है। और जब आप उसके साथ गई, रहने लगी, कोई शक व शुबा नहीं हुआ कि कहीं ये मुझे आगे फरोख्त ना कर दे? होता था। होता था? हाँ जी, फिर लेकिन उसने नहीं किया। ठीक हो गया, तब तक पुलिस आ गई थी। पुलिस आ गई। ठीक है। नाज़रीन, आपने लड़की की और उसकी वालिदा की गुफ्तगू सुनी। लड़की किस तरह पंजाब से जो कि सिंध के इलाके में फ़रोख्त हुई और उसके बाद वहाँ पर उसको आगे 4.5 लाख रुपए में फ़रोख्त किया गया, और जो कि इस सारे मामले में इस जितने भी जो भी मामलात हुए थे उसमें मैडम मुनज़्ज़ा करामत साहिबा जो कि ASP रिनाला खुर्द, और उसके बाद मैडम मुनज़्ज़ा करामत साहिबा ने किस तरह इस फैमिली के साथ पूरा जो कि ताउन किया, और ताउन करने के बाद उसको इस बच्ची को वहाँ से आज़ाद करवाया, और आज ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ मौजूद है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तदबीर मीडिया।